Hello students. So now we are back from again geography classes for class 8. So last time where we left was till areas of high density, that is page number 12. So now we will be starting from page number 13, that is areas of moderate density. So before going to that, we will just have a look on previous what we had gone through. We were continuing from chapter 2, that is population dynamics. So here what we did is we learned about population and which continent has the highest population, which continent has the lowest population, that is Asia is the highest population, and the country wise population also we went through that, that is in Asia China and India are the most populated cities continent in the world, and then Australia is the least populated continent. So then what we read about growing population of the world, then we covered population distribution trends in the world, and then we continued for population density. Then we the areas of high density, what are the examples, what are the countries where there is high population density, we learned till now. Then next we'll be starting the areas of moderate density, that is the areas where neither high populated neither less populated, that is moderate. So moderate population density, what are the areas and what are the factors contributing to this moderate density we'll be learning. The following are some of the areas of the world that have moderate density of the population. Extreme of climate, inadequate rainfall and absence of important resources do not encourage dense population in the regions. यहाँ क्या दिया है? Moderate density यहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट, जहाँ ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट मतलब ज़्यादा हॉट ज़्यादा कोल्ड, तो ये उसको बोलते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट. एक्सट्रीम क्लाइमेट, इनएडुकेट रेनफॉल, इनएडुकेट रेनफॉल मतलब जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल नहीं हो रही, एडुकेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल नहीं हो रही, उसको इनएडुकेट रेनफॉल बोलते हैं. एंड एब्सेंस ऑफ इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस, इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस आपको पता है क्या क्या है? लैंड, सॉइल, रिसोर्सेस, मटेरियल, मिनरल्स, these are called resources. तो extreme of climate, inadequate rainfall and absence of important resources do not encourage dense population. ये सब क्या करते हैं? encourage, बढ़ावा नहीं देते हैं dense population मतलब ज़्यादा population को in these regions. In which regions? These are the regions: central part of United States of America, tropical Western America. Tropical मतलब very hot and humid climate in the tropics is called tropical climate. So tropical Western America, Russia, Eastern Europe, Deccan Plateau of India, Central China. तो ये सब सारे examples हैं where dense population in these regions, यहाँ पर क्या होता है? It does not encourage dense population. Now let's move to areas of low density. इसका मतलब ये एरियाज जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है. स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज और द एरिया विथ लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंक्लूड, जहाँ लो डेंसिटी है वो कौन कौन से एरिया है? एरिड रीजन्स कंपेयरिंग द हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, माउंटेन रीजन्स, dense forest like those in the hot and wet equatorial zone, insufficient arable land and water supply along with lack of transportation and unfavorable climatic conditions are responsible for the low population growth in these regions. तो यहाँ पर ये पैराग्राफ हमको क्या बता रहा है? ये रीजन में लो पॉपुलेशन डेंसिटी है.
कहाँ पर, कौन कौन से रीजन में, जहाँ हॉट डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है, माउंटेन रीजन्स है, डेंस फॉरेस्ट है, जहाँ पर क्या है, लैंड उतना ठीक नहीं है, जहाँ वाटर सप्लाई कम है, ट्रांसपोर्टेशन कम है, अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, जहाँ क्लाइमेट ठीक नहीं है, तो ये सब एरिया में क्या होता है, लो पॉपुलेशन होता है ज़्यादा। एग्जाम्पल क्या है, मंगोलिया, ए डेजर्ट कंट्री इन एशिया। कहाँ है मंगोलिया, एशिया में, जहाँ पर लो पॉपुलेशन ग्रोथ है। रिकॉर्ड मंगोलिया रिकॉर्ड्स द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 2 people per स्क्वायर किलोमीटर। इसका कंडीशन क्या है, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने हैं, 2 people खाली हैं। अगर एक स्क्वायर किलोमीटर में अगर 100,000 होंगे तो उसका पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जा रहा है। और 1 स्क्वायर किलोमीटर में अगर 2 people हैं तो इसका क्या है, वेरी लो पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके, अदर एग्जाम्पल्स आर आइसलैंड, सुरीनेम, बोट्सवाना, Namibia and northern Canada are some of the other sparsely populated parts of the world. ये सब क्या है, जहाँ पर कम पॉपुलेशन है। ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो शोज ए पुअर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ डेजर्ट। यहाँ डेजर्ट के कारण यहाँ पर लो पॉपुलेशन होता है, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। एंड रिमोट एंड इनएक्सेसिबल इंटीरियर्स नोन एज आउटबैक्स। आउटबैक्स कहाँ है, रिमोट एरियाज है, इसलिए वहां पर लो पॉपुलेशन डेंसिटी। अंडरस्टूड नाउ? सो नाउ हियर we read about population density, what is population density, how it can be calculated, what are the areas of high density with examples, what are the areas of moderate population density with examples, and what are the low population density with examples. Understood? Clear? The next is your homework, life skills research. So what you have to do is refer to the political map of the world given in the chapter to locate the areas with high, moderate and low density of population. On the political map of the world, क्या करना है आपको, political map world का वो लाना है, उसमें shade the areas with high and low density of population. यहाँ एरियाज जहाँ पर हाई डेंसिटी है, जहाँ लो डेंसिटी, वहाँ पर शेडिंग करना है आपको, फाइंड आउट एंड शेड इट। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड सो फार, यू कैन नाउ नोट आउट द फेवरेबल फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन। फेवरेबल फैक्टर्स मतलब कंडीशंस जहाँ पर इंसान रह सकता है, एंड द डिटेरेंट फैक्टर्स ऑफ पुअर पॉपुलेशन। कहाँ पर कौन सा फैक्टर्स के कौन सा कंडीशंस में पुअर पॉपुलेशन ग्रोथ होता है और कहाँ पर फेवरेबल फैक्टर्स में ह्यूमन हैबिटेशन और ग्रोथ, हाई ग्रोथ होता है, वो वाला आपको यहाँ पर लिखना है। ये आपका टास्क है। अदर टास्क क्या था, लाइफ स्किल्स रिसर्च और दूसरा है लाइफ स्किल रिसर्च। ये दोनों आपका टास्क है, ये आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स ओवर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी समझ में आ गया। अभी क्या बोलेंगे, ओवर पॉपुलेशन। जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया वो ओवर हो गया, जहाँ लिमिट के पार हो गया वो ओवर पॉपुलेशन हो गया। जहाँ पर एरिया जो कि पॉपुलेशन को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, इंसान को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, ओवर पॉपुलेशन। द टर्म ओवर पॉपुलेशन मीन्स ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल फॉर द अवेलेबल रिसोर्सेज इन द रीजन। क्या है, यहाँ पर एक रीजन में बहुत लार्ज, वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल फॉर द अवेलेबल रिसोर्स। एक एरिया है, एक सपोज ये एरिया है, ये एरिया में अब क्या करेंगे, यहाँ पर रिसोर्स ये एरिया के ही हिसाब से है। फिर यहाँ ज़्यादा अगर पॉपुलेशन हो जाएगा, ये एरिया जो कि ये एरिया कैपेसिटी कम है इसको ये करने के लिए पॉपुलेशन को, तो ओवर पॉपुलेशन हो जाता है। इसमें रिसोर्स उसी के ही अनुसार होगा जितना एरिया है, लेकिन ओवर पॉपुलेशन में क्या हो जाता है, जो कि अवेलेबल रिसोर्सेस कम पड़ जाता है वो एरिया के लिए। दिस हैपन्स either due to a sudden increase in population or depletion of resources। किस चीज की वजह से होता है ये ओवर पॉपुलेशन, ऑल ऑफ ए सडन इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अचानक से ढेर सारा पॉपुलेशन आ जाएंगे रहने के लिए,
तो कैपेसिटी कम हो जाएगा वो एरिया का। और डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, व्हाट डू यू मीन बाय डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज कम पड़ जा रहा है, धीरे धीरे वैनिश हो जा रहा है। क्यों वैनिश हो जा रहा है, ये सब सारा पॉपुलेशन यूज कर ले रहा है, इसलिए ए सिचुएशन ऑफ ओवर पॉपुलेशन में लीड टू हाई रेट ऑफ जॉबलेस। यहाँ क्या होगा, ढेर सारे पॉपुलेशन को जॉब ये नहीं दे पाएगा, इसलिए क्या हो जाता है, हाई रेट ऑफ जॉबलेस, पुअर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। पुअर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग मतलब उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई नहीं होगा, लो होगा। और द राइज इन ऑकरेंस ऑफ डिजीज, जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन रहेंगे, पूरा एक ही जगह में कन्फाइंड होकर के, तो ज़्यादा स्पेस नहीं होगा, तो इससे क्या होगा, डिजीज जल्दी स्प्रेड होगा, पोवर्टी होगा एंड पुअर एनवायरमेंटल कंडीशंस। इंडिया, बांग्लादेश एंड चाइना आर सम ऑफ द ओवर पॉपुलेटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। क्या यहाँ पर एग्जाम्पल भी क्या दिया, ओवर पॉपुलेटेड का एग्जाम्पल है इंडिया, बांग्लादेश एंड चाइना। इन एनी गिवन एरिया, एक एरिया में द अवेलेबल रिसोर्सेस आर एडवोकेट टू सपोर्ट ए सर्टेन नंबर ऑफ पीपल। एक एरिया में उतना ही रिसोर्स है जो कि सपोर्ट कर सकता है एक अमाउंट ऑफ पीपल को, जितना उसका कैपेसिटी है उतना ही सपोर्ट कर सकता है। दिस इज रिफर्ड टू एज ऑप्टिमम पॉपुलेशन। उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम पॉपुलेशन। जितना पॉपुलेशन होना चाहिए उतना ही वो कन्फाइंड एरिया में होता है, उसको ऑप्टिमम पॉपुलेशन। पीपल एंजॉय हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग एंड सफिशिएंट रिसोर्सेस फॉर यूटिलाइजेशन। क्या करते हैं, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए क्या करते हैं, रिसोर्सेस को उन लोग यूटिलाइज करते हैं। व्हेन द पॉपुलेशन इज ऑप्टिमम, अगर जितना कैपेसिटी उतने ही पॉपुलेशन रहेंगे तो वो रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर पाएंगे। द रेशियो ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेस इज वेल बैलेंस्ड। इससे क्या होता है, द पीपल और रिसोर्स उसका एक नॉर्मल बैलेंस हो जाता है। दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड if the number of people is drastically higher or lower than the optimal population। एक पॉपुलेशन में अगर ज़्यादा और कम हो जाएंगे पीपल तो बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है। क्या का बैलेंस को, पॉपुलेशन और रिसोर्सेज का बैलेंस। ओवर पॉपुलेशन वी हैव रेड, देन नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन। व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन? Overpopulation may have several detrimental effects on the economy as well as the society। क्या होता है, इकोनॉमी मने हमारे पैसे और फाइनेंसेस में असर पड़ता है ओवर पॉपुलेशन होने से, और सोसाइटी में भी असर पड़ता है। द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन इज द डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स। एज वी हैव स्टडीड earlier, population is directly related to resources, that's why it directly impact द रिसोर्सेस। अगर रिसोर्सेस ज़्यादा रहेगा और कम पीपल रहेंगे, ये भी तो धीरे धीरे जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो रिसोर्सेस उतना ही रहेगा, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, तो इससे क्या होता है, रिसोर्सेस एक टाइम आएगा जबकि डिप्लीशन हो जाएगा, जो कि कम हो जाएगा। महात्मा गांधी once said, अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड but not every man's greed। और जर्मन इकोनॉमिस्ट E.F. Schumacher also reiterated by advocating small is beautiful। It means that we need not use the resources of the earth so much that it can keep pace with natural regeneration। So we have to use the resources in limited amount, how much we want, otherwise there will be depletion of resources। The next is overutilization of resources।